Hello students, welcome back to Tuition Masters class 9th and 10th YouTube channel, and today we are here with a very amazing session for trigonometry. So ये grade 10 का आपका chapter है Introduction to Trigonometry. I have made few sessions before but I thought कि ये chapter को लंबा खींचने से अच्छा we cut short it and make it a one short session. So इस वीडियो में we are going to cover the full chapter. Okay, easy tricks to remember along with some important questions. Few only will do, not much. Few important questions we are going to do related to trigonometry. ठीक है, तो introduction to trigonometry, उसके बाद we are going to study about the applications also. Okay, वो तो बहुत ही छोटा सा chapter है. Okay, so let's start with trigonometry. Okay, तो already I have made few videos की trigonometric ratios क्या होती है, then exercises also we did a few, right? तो आज के वीडियो में हम लोग वन शॉट सेशन करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट करेंगे हम. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे? लेट्स लुक ओवर योर फर्स्ट. और फॉर दैट वी हैव फोर ऑब्जेक्टिव्स टुडे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. पहले हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, राइट? व्हाट आर द रेशियोज? नथिंग बट द राइट एंगल ट्राइंगल एंड द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हिच वी हैव. पहले वो पढ़ लेंगे. नेक्स्ट we are going to understand about the trigonometric ratios of some specific angles and complementary angles also. Then important and the last part of the chapter, we are going to do the trigonometric identities and the derivation of them, and at the end we are going to do some important questions of this chapter. Okay, so ये चार objectives are for our today's class. So let's start this amazing session with a big thumbs up, a big like, share with your friends and subscribe to channel right away. So start करते हैं. पहले via blank slide here. So see this. We all know about triangles. Triangles क्या होते हैं? Three sided figure. When I talk about trigonometry, correct? ट्रिग्नोमेट्री, व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ये डील करता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल से. ओके, इट्स रिलेटेड विद राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, करेक्ट? जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होते हैं उनसे रिलेट करते हैं. isn't it? Let me check in my shapes if I have. Okay, I do not have here, but here I can draw a rough diagram. See this. व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें थ्री साइड्स है, क्योंकि ट्रायंगल है, बट वन एंगल इज 90 डिग्री. एक एंगल 90 डिग्री होता है. व्हाट आर द साइड्स? हमको पता है दिस AC इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज इट नोन एज? हाइपोटेन्यूज. ओके, हमने 6-7 में ऑलरेडी पढ़ा व्हाट इज हाइपोटेन्यूज एंड ऑल, राइट? तो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, जो एक एंगल तो 90 है, बट ये एंगल C, angle A, based on them we find the ratios of the side, like hypotenuse by perpendicular and all that. What are perpendicular, what is adjacent, I'll explain you, right? One more thing you have to study in this chapter which is really important is the Pythagoras theorem, right? पाइथागोरस, व्हेन आई सेड पाइथागोरस थ्योरम, आई होप आप सबके ब्रेन्स में आ गया होगा कि क्या थी पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट वाज द पाइथागोरस, क्योंकि ये चैप्टर में दैट इज वेरी नीडेड. इफ यू डू नॉट नो पाइथागोरस थ्योरम, दिस चैप्टर विल बी वेरी टफ. सो यू हैव टू नो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम. सो फर्स्ट, what is the Pythagoras theorem? H square is equals to P square plus B square. So Pythagoras उन्होंने बताया था, मैथमेटिशियन ने, कि ये हाइपोटेन्यूज, दिस साइड हाइपोटेन्यूज AC, अगर हम AC का होल स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर. यू कैन से ये परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर प्लस वो ट्राइंगल का बेस का परपेंडिकुलर BC square. That was the Pythagoras theorem. And hypotenuse, that is the longest side of the right angle triangle. कोई भी right angle triangle में hypotenuse सबसे longest side होगी. And this was the Pythagoras theorem. तो ये तो हमारे कुछ मतलब प्रीवियस नॉलेज का हम ब्रश अप कर रहे हैं फास्ट, राइट? अब मेन ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? सो हियर यू सी ट्रायंगल के साइड्स, लेट्स लेबल देम. यह जो सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है, करेक्ट? अगर हम लेते हैं ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट से हमको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट एडजेसेंट साइड्स. ओके, तो
हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज रिमेन सेम. 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, इट विल रिमेन सेम. कोई भी ट्रायंगल में कोई भी सॉरी कोई भी एंगल ले लो, ए भी ले लो सी भी ले लो, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा. दैट इज ऑपोजिट टू द right angle, isn't it? So that is always hypotenuse. Up, if I'm talking about angle A, if I'm talking about angle A, what is the opposite side? अब angle A ये है इधर है, right? You can see I've marked it. Angle A is this. What is the opposite side? Opposite मतलब सीधा सामने, BC. So BC becomes the opposite side. You can even say that is opposite or perpendicular side. Okay. With respect to angle A, I'm talking about with respect to angle A. Very clearly listen. Angle A के respect से BC opposite side है क्योंकि एकदम सामने है, correct? And adjacent कौन सा है? Adjacent मतलब एकदम touch to touch. Which is that side? अभी दैट कैन बी हाइपोटेन्यूस ऑल्सो, दैट कैन बी एडजेसेंट साइड ऑल्सो, बट हाइपोटेन्यूस हम नहीं लेंगे बिकॉज उसके तो ऑलरेडी है ना वो हाइपोटेन्यूस, वो भी एडजेसेंट साइड है बट दैट इज अ हाइपोटेन्यूस. सो वी विल नॉट कंसिडर दैट, वी विल कंसिडर ओनली दिस साइड. सो दिस इज द एडजेसेंट साइड विच इज क्लोज द बेस साइड विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए. एंगल ए, why are we learning this? Because with a hypotenuse perpendicular base we are going to make the trigonometric ratios now. Okay. तो एंगल ए के हिसाब से BC is opposite side and AB is the adjacent side. What about with respect to angle C? अगर हम एंगल C को कंसिडरेशन में लेते हैं, will it be the same? Let's rub all of this. Let's rub these things. अब let's talk about angle, angle C. With respect to angle C, what will happen? Now with respect to angle C, अभी देखो, हाइपोटेन्यूस विल रिमेन सेम. हाइपोटेन्यूस ए ले लो, सी ले लो, बी ले लो, कोई भी लो, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा. ऑपोजिट कौन सा है? इफ यू सी हियर ऑपोजिट, सामने वाली साइड तो ए बी है, सो द ऑपोजिट साइड इज ए बी. ऑपोजिट साइड ए बी है, करेक्ट. व्हाट अबाउट एडजेसेंट? एडजेसेंट साइड कौन सी है? एक तो ये है, एक तो ये है, पर वो ये दिस वन इज द हाइपोटेन्यूस, सो बच्ची BC. तो adjacent side is BC. Now if you observe when I talk about A में BC opposite side थी, but C में opposite side है AB. Sorry, similarly AB, okay, AB was the adjacent side in angle A, but adjacent C में कौन सा है? BC. So अगर दोनों एंगल्स के अलग अलग एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड्स होते हैं, सो इन द क्वेश्चन वॉट एवर दे आर टेलिंग विच एंगल दे आर गिविंग यू, दैट यू हैव टू लुक फॉर द एडजेसेंट एंड ऑपोजिट. ओके, क्लियर? नाउ अभी ऑपोजिट और परपेंडिकुलर वन एंड द सेम थिंग, एडजेसेंट और बेस वन एंड द सेम थिंग. वो कुछ अलग चीज नहीं होती है. एडजेसेंट परपेंडिकुलर, एडजेसेंट बेस सेम है, ऑपोजिट परपेंडिकुलर सेम होते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ओके, रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज आर नथिंग बट समथिंग बाय समथिंग. ठीक है, एनी वैल्यू विल डिवाइडेड बाय एनी एलिमेंट, दिस विल गिव मी द रेशियो. करेक्ट. सो what we take to make this trigonometric ratio, हम एक रैंडम एंगल लेते हैं, हम लेते हैं थीटा. एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल है थीटा. विद रिस्पेक्ट टू दैट वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. ये 3 मेन है और उनके रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. साइन कॉस टैन के रेसिप्रोकल्स है कोसेक, सेक एंड कॉट. राइट. अब देखो लेबलिंग, ये तो हुआ हमारा हाइपोटेन्यूज. अब बेस वी कैन इवन राइट इट एज एडजेसेंट. करेक्ट, बेस को हम एडजेसेंट भी लिख सकते हैं और परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं. ओके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, सो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कैन इवन राइट एज बाय ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो होता है साइन थीटा. cos theta is base or you can even say adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse या फिर base by hypotenuse gives me cos theta. ठीक है, cos. Then next आता है this thing
tan theta is again perpendicular by base. tan में वी विल यू विल नॉट हैव द हाइपोटेन्यूज, tan में हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज है साइन और कॉस में, ठीक है। तो tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और यू कैन इवन से ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ओके। अब नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक सेक और कॉट में क्या फर्क है? इनमें कोई नए एंगल्स नहीं बन रहे, सेम एंगल्स है, बस उनके रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या था? पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था। कोसेक उसका रेसिप्रोकल है, एच बाय पी, और यू कैन इवन से एच बाय ओ, रेसिप्रोकल। उल्टा, दैट्स इट, रेसिप्रोकल कर दो, यू विल गेट कोसेक। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो साइन कॉस और tan ये मेन है, और बस इन सब के रेसिप्रोकल कॉस सेक, सेक और कॉट है, सिंपल। अब it is sometimes, even when I used to study this chapter, for me also it was a bit difficult, okay। ये सारे सिक्स के सिक्स कैसे याद रखे? एग्जाम में ये तो नहीं पूछेंगे साइन थीटा लिख दो, नो। इन कैलकुलेशंस हाउ शुड वी यूज इट, कुछ नेमोनिक ट्रिक वर्ड, सो यस वी डू हैव इट। नाउ आपको हमेशा बस याद रखना है साइन, tan, कॉस, बस इन तीनों को याद रखना है। इन तीनों को याद रख लिया तो इनके जो ऑपोजिट्स है, व्हाट ऑपोजिट मतलब इनके जो कॉन्वर्ट्स है, दो रेसिप्रोकल्स है, वो तो वी ऑलरेडी नो। तो रेसिप्रोकल तो इजीली हो जाएगा, कोसेक, सेक और कॉट। बट द मेन चीज आती है अबाउट इन तीनों को कैसे याद रखें। सो वी हैव अ ट्रिक। व्हाट ट्रिक? सी दिस। फर्स्टली इन सबके फर्स्ट लेटर्स लिखते, ठीक है। फर्स्ट लेटर एस, देन चलो साइन कॉस टैन, ठीक है। सो सी और टी, ठीक है। अब एज पर आवर रेशियोस पहला कौन सा आता है? पहला लेटर कौन सा है? साइन के लिए वी हैव ऑपोजिट, साइन के लिए ऑपोजिट है, कॉस के लिए एडजेसेंट है, टैन के लिए भी ऑपोजिट है। सो राइट ओवर हियर ओ, ऑपोजिट, एडजेसेंट और अगेन ऑपोजिट, करेक्ट। अब नेक्स्ट कलर लेते हैं, एक दूसरा न्यू कलर लेते हैं। अब व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नीचे के डिनोमिनेटर में साइन थीटा के लिए वी हैव हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए भी हाइपोटेन्यूज, एंड टैन के लिए एडजेसेंट। सो राइट दैट एच एच ए, राइट। सो यू कैन रिमेंबर ये सारे जो कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा है, आप यू कैन रिमेंबर इट इन दिस वे, ऑलराइट। So this was a very small mnemonic which you can remember. So ये आपका हो गया एक शॉर्ट फॉर्म, यू कैन रिमेम्बर लाइक COH, CAH, TOA, you can remember that way. Sin theta, cos theta and tan, you can remember it this way. Sin theta opposite by hypotenuse, cos theta adjacent by hypotenuse, tan theta ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। व्हेन यू रिमेंबर दिस, आप इजीली कौन से नेक्स्ट होते हैं उनके रेसिप्रोकल्स ले सकते हो, यू नो। यू कैन टेक कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, थीटा, इनके आप ले सकते हो। कोसेक का होगा एच ओ, करेक्ट। देन सेक का होगा एच ए, और टैन का है, सॉरी कॉट का होगा ए ओ, करेक्ट। हियर इट इज हाउ, ऑलराइट, ठीक है। So let's move to the next part, that is reciprocal identities. अब हमने रेसिप्रोकल्स पढ़े, अभी जस्ट पढ़े ना हमने रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा इज द इट्स इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। इफ यू लुक ओवर हियर, साइन थीटा है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक क्या है? हाइपोटेन्यूज पे ऑपोजिट, तो बस उसका रेसिप्रोकल है, करेक्ट। इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल। और कोसेक थीटा भी क्या है? कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, और साइन थीटा है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो इन दोनों का क्या है? वो रेसिप्रोकल है। इट इज इक्वल्स टू 1 बाय ओ एच। अगर एच ऊपर चला गया तो व्हाट विल बिकम? एच बाय ओ ओनली, राइट। दैट इज कोसेक थीटा, सिंपल। तो अब ऐसे इसको यू हैव टू रिमेंबर द रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा? Cos theta is equals to 1 by sec theta. Cos is nothing but adjacent by hypotenuse, and sec is equals to 1 by adjacent by sorry
adjacent by hypotenuse, right? Huh. So we will write over here again adjacent by hypotenuse. तो ये h अगर ऊपर चला गया, sorry a ऊपर चला गया, तो what will you get? A by h. So that is the reciprocal. And opposite to क्या है, converse क्या है, sec theta. Sec theta is equals to 1 by cos theta. Similarly tan के लिए भी tan is the reciprocal of cot and cot is reciprocal of tan. ठीक है, तो these are your reciprocal identities. Next, important, this is the most important part, okay, important, trigonometric ratios. कोई स्पेसिफिक एंगल्स हम लेते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90. दीज एंगल्स वी टेक और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन एंगल्स के लिए. तो यू हैव टू रिमेंबर इट. ये टेबल यू डू नॉट हैव एनी ट्रिक, यू कैन मतलब ट्रिक्स तो है पर यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू बाय हार्ट इट. साइन थीटा 0 डिग्री पे वैल्यू 0, 30 पे 1/2, 45 डिग्रीज पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1. 90 पे 1. साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 वैल्यूज है. ठीक है. नेक्स्ट कॉस थीटा. कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2, देन 60 पे 1/2 एंड 90 पे 0. अब स्टूडेंट्स कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग, 0 एंड में आया, 1/2 इधर आया, √3 इधर आया, ये मिडल में आया और 1 लास्ट में आया. कैन यू ऑब्जर्व दैट इट इज जस्ट द ऑपोजिट, एकदम रिवर्स में लिख दिया हमने. साइन का जो वैल्यूज है वी आर राइटिंग इट इन द रिवर्स. कॉस का रिवर्स हो गया, वो इधर था 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0. और अगर इधर स्टार्टिंग से लिखे सो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, सेम, राइट. सो अब यू कैन यूज सच ट्रिक्स इन टू. ठीक है. अब tan थीटा, tan थीटा भी 0 है एट 0 डिग्री, 30 डिग्री पे 1/√3 हो जाता है, 45 पे 1 एग्जैक्ट एंड 60 डिग्री पे √3 हो जाता है. ओके. बट 90 डिग्री पे वो डिफाइंड नहीं है, वी कैन नॉट फाइंड इट एट 90 डिग्री. सिमिलरली कोसेक थीटा 1 पे, सॉरी 0 डिग्री पे हम उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते, पर 30 डिग्री पे कोसेक की वैल्यू है 2, 45 पे √2, 60 पे 2/√3 और 90 डिग्री पे 1. ओके. सिमिलरली सेक, सेक और कोसेक अगेन सेम थिंग, उल्टा 1 2/√3, √2 2 नॉट डिफरेंट. देखो what is this, nothing but the reciprocal ना, एकदम reciprocal नहीं, मतलब रिवर्स में हमने लिख दिया. करेक्ट. एंड एट द एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, फर्स्ट वन 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, √3 एट 30 डिग्री, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 1/√3 एंड 90 डिग्री पे 0. सो दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज. ठीक है. सो रिमेंबर रखो 0 डिग्री पे 1 और 1, कॉस और सेक ही 1 होंगे, बाकी सब 0 या नॉट डिफाइंड है. और 90 डिग्री पे साइन और कोसेक वापस, साइन और कोसेक 1 रहेंगे एग्जैक्टली, बाकी सब 0 है नॉट डिफाइंड. ठीक है. सो हैव टू रिमेंबर दिस. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नाउ we let us find out to do the complementary angles. Now we know complementary angles क्या होते हैं. Let's say हमारे पास दो complementary angles है, A and C are complementary angle. Let's consider करते हैं कि ये जो है दोनों complementary है. Okay, they both are complementary angles. ठीक है. A and C complementary angles है. If they are complementary, क्या property हुई? A plus C will be 90 डिग्री. दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री हो गया. करेक्ट. इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C, अगर C की वैल्यू ढूंढनी है तो C कितना होगा, A उधर जाएगा, 90 माइनस A बन जाएगा. करेक्ट. सो अगर मैं 90 माइनस A ले हम लोग, ठीक है, और अगर इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स साइन इंटू 90 माइनस A, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी
कॉस के इक्वल, हाउ कॉस के इक्वल, बिकॉज इफ वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, सो लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल फर्स्ट, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, ओके ओके। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं राइट एंगल, ठीक है, एक 90 डिग्री वाला, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ओके। लेट्स टेक, अगर हम ए एंड सी को कंसिडर कर रहे हैं, राइट, सो लेट्स टेक, हम एंगल ए की बात करते हैं, ठीक है, एंगल ए। सो दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, करेक्ट, दिस इज माय एडजेसेंट, दिस इज माय ऑपोजिट, ओके। तो साइन 90 डिग्री क्या हुआ, साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन 90 माइनस ए will be the value of cos. Cos मतलब AB adjacent by hypotenuse, that is nothing but my cos A, correct. So therefore हम इसे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इफ यू सी साइन 90 डिग्री, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा, साइन 90, सॉरी, what is sin 90 degree, sin 90 degree is exactly 1, correct. So a cos A हो गया. So what can we conclude from this, we can conclude that sin 90 minus A, okay, that will be nothing but cos A, करेक्ट। और अगर हम 90 निकाल देते हैं, इसको थीटा भी करते हैं, तो वो भी 90 माइनस थीटा एंड विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, सो दिस बिकम्स आवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली हमारे पास ये सारे 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, व्हाट आर दे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस इंटू 90 माइनस 30, sorry 90 minus theta, then converse of this, cos theta is equal to sine into 90 degree minus theta. You can prove all of this by the same method I did, ठीक है। उसके बाद tan theta is equals to cot multiplied by 90 minus theta, और cot क्या होगा, tan multiplied by 90 minus theta, okay। then last वाला second cosec, sec is cosec into 90 minus theta, and cosec बनेगा opposite, sec into 90 minus theta. So these are your complementary angles which you have to remember, okay, these are all formula and everything, you have to remember it, okay। अब आते हैं towards the last part of the chapter, that is trigonometric identities. Trigonometric identities last part of this chapter, then we'll go towards the question, क्या trigonometric identity है क्या actually। so whenever कोई भी equation में जहाँ पे हम trigonometric ratios, you know, sin theta, then cos theta and tan theta, ये सब हम जब use करते हैं, okay, when we are using all this thing, so उसमें जो एंगल्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई भी एंगल के जो रेशियोज हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट द कंडीशन इज इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। जितने भी एंगल्स इन्वॉल्व है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हर एंगल के लिए इक्वल प्रूव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इक्वल प्रूफ होनी चाहिए, दैट इज द वन एंड ओनली कंडीशन वी हैव ओवर हियर, इजंट इट। तो what is the three identities, three identities है, but you have to remember it so well that it is just, you know, stick inside your heart. So yeah, let's see. First one, the first identity is cos स्क्वायर थीटा, cos का थीटा लेंगे हम प्लस साइन का थीटा लेंगे, सो दैट विल गिव मी 1, ठीक है। तो क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी सेज दैट, पहली आइडेंटिटी बेसिकली वो कहती है कि अगर हम cos का स्क्वायर ले, cos थीटा का होल स्क्वायर ले, और विद दैट साइन थीटा का भी स्क्वायर ले, और उन दोनों को ऐड करेंगे, सो वी विल गेट एग्जैक्टली 1, क्या मिलेगा हमको, एग्जैक्टली 1। लेट्स प्रूव इट, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे साथ साथ में प्रूफ करेंगे। तो हमको क्या प्रूफ करना है अभी, वी हैव टू प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। सो पहला कंस्ट्रक्शन, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, करेक्ट, 90 डिग्री, करेक्ट। सो A, B, C. Alright, A, B, C we did. Now, let's try proving it. अब in triangle ABC, ये triangle है हमारा, correct, ABC, ABC triangle है, we can say that
Pythagoras theorem, if we use a Pythagoras theorem, what will we get? Base square perpendicular square. So that means AB square plus BC square will give me what? AC square. Correct. It will give me how much? It will give me AC square, right? Why AC square? Because that is the hypotenuse. Hypotenuse is, so that will give me AC square. Correct. अब if I divide all of this by AC square, अगर मुझे ये पार्ट निकालना है या उसको वन बनाना है, क्योंकि वन कैसे बनेगा? अगर ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर कैंसल कैंसल के वन बन जाएगा. सो लेट्स डू इट. अभी मैं इन सबको ए से डिवाइड करते हैं हम लोग. ठीक है. सो ए ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी से बाय ए सी स्क्वायर. करेक्ट. प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर. ओके. ये हमारा सब प्रॉब्लम है अभी. अभी स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा. करेक्ट. व्हाट विल इट बिकम? होल स्क्वायर ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर, और ये ए सी स्क्वायर कैंसिल होके बन जाएगा वन. अब इफ यू लुक केयरफुली, वी आर टेकिंग ए. ओके. ए हमारा एंगल है इधर. ठीक है. इफ यू लुक हियर केयरफुली, ए बी बाई ए सी, AB by AC adjacent by hypotenuse is what? Cos. तो ये बन गया cos A स्क्वायर. करेक्ट. प्लस अब BC by AC क्या है? BC तो है ऑपोजिट, AC है हाइपोटेन्यूज. सो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? SOH हमने पढ़ा था. सो दैट इज साइन स्क्वायर. करेक्ट. दैट इज साइन A होल स्क्वायर. That is equals to 1. So with this, what did we find out? हमने क्या ढूंढ लिया? We found out that cos square plus sin square A या theta, whatever value you're taking, will be 1. Correct. So hence हमने क्या कर लिया? हमने इसको प्रूव कर लिया कि that is the correct value. Correct. करेक्ट वैल्यू है ना वो, बिकॉज हमने इफ वी डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ दैट, सी हमने पूरा डिवाइड कर दिया. सो वी गॉट द आंसर. ओके. सो नाउ ये हो गया हमारी पहली आइडेंटिटी. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आइडेंटिटी है वन. अब वन स्टार्टिंग में ही है. वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. अगर हम tan के स्क्वायर में वन ऐड कर देते हैं तो हमको sec थीटा मिल जाएगा. सो वी विल यूज द सेम ट्राइंगल. सेम ट्राइंगल हम यूज करेंगे ए बी सी. ओके. वी आर यूजिंग द सेम ट्राइंगल हियर ऑल्सो. ओके. ए बी सी सेम ट्राइंगल यूज करेंगे, पर इस पर हमारी थ्योरम क्या है? वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. करेक्ट. sec स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है. करेक्ट. अब अगेन लेट अस राइट एवरीथिंग इन द फॉर्म. क्या फॉर्म हमने पिछली बार हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया था ना. व्हाट इज दिस? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. लेट्स से दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ओके. ये हमको मिला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. लेट्स राइट इट ओवर हियर. फटाफट से लिखते हैं. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. करेक्ट. अब पहले ही हमको वन चाहिए, तो लेट अस डिवाइड बाय ए बी. अगर ए बी से डिवाइड करेंगे तब भी वन मिलेगा हमको. सो ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर. करेक्ट. प्लस बी सी को भी करना पड़ेगा. करेक्ट. बाय ए बी स्क्वायर एंड देन फाइनल ए सी बी. ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर. ठीक है. अब नाउ लुक अगेन. ए बी तो बन गया वन प्लस बी सी बाई ए बी क्या है? इग्नोर द स्क्वायर. स्क्वायर को इग्नोर करो. बी सी बाई ए बी क्या है? बी सी बाय ए बी, सॉरी ए बी, नॉट दिस वन, ए बी. बी सी क्या है हमारा? ऑपोजिट साइड. करेक्ट. ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, वो तो tan होता है. सो दिस इज tan स्क्वायर ए. अब ए सी बाई बी सी. ए सी क्या है? ए सी तो है हाइपोटेन्यूज. ए बी क्या है? ए बी इज माई ऑपोजिट, सॉरी एडजेसेंट. हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट एडजेसेंट क्या होता है? दैट इज सेक. सो सेक स्क्वायर ए. सो दैट वाज द थिंग वी वांटेड टू फाइंड आउट. सो ये हमने प्रूव कर दिया. ओके. नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कौन सी थ्योरम है? नेक्स्ट आइडेंटिटी इज वन प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब कॉट स्क्वायर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो कोसेक बन जाता है। हाउ? वापस लेट्स प्रूव इट विद द सेम आइडेंटिटी, सेम ट्रायंगल वी विल ड्रॉ। ओके, सेम ट्रायंगल, नो चेंजेस, ए बी सी। ओके, नाउ दिस टाइम हमको क्या प्रूव करना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec square theta. This we have to prove. ठीक है, again write the same things. AB square plus BC square is equals to AC square. लिख दिया फर्स्ट थ्योरम, करेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको BC चाहिए, सॉरी हमको क्या चाहिए? 1 बनाना है, 1 बनाना है, करेक्ट। तो हम इससे क्या डिवाइड करेंगे? हम BC से डिवाइड करेंगे, करेक्ट, बिकॉज इफ वी डू इट बाय AB से करेंगे तो सेम बन जाएगा ना, तो हम BC से करेंगे इस बार। ओके, विल डू बाय BC। सो AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। सबको डिवाइड किया, अब लेट्स फाइंड आउट AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। AB क्या है? AB is adjacent, adjacent by opposite। adjacent by opposite क्या होता है? वो हो जाता है cot, isn't it? That is cot, correct? So this is cot square है plus BC square बन गया 1, that is equal to AC। AC क्या है? hypotenuse by opposite। hypotenuse by opposite is nothing but cosec। so ये बन गया cosec square A। so that is what you have to find। और यही तो हमको ढूंढना था, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। so we found out, and with this we have completed with the whole trigonometry ka chapter। now we are going to do some important, very very important, I will say, questions। so everyone ready for questions? if you want a break you can pause this video and go and immediately come back for the very very interesting and fun questions। okay, so let's start। Question number 1 says tan A by 1 plus sec A minus tan A by 1 minus sec A is equal to 2 cosec A। How? We have to prove this। ठीक है, प्रूव करना है। चलो लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल। हमेशा ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, नेम इट एज ABC। ठीक है, ओके। नाउ look carefully now, as per this question। okay, let's go as per the questions and do it। सो गोइंग एज पर द क्वेश्चन, एक ट्रायंगल तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने क्या दिया? tan स्क्वायर tan A बाय 1 प्लस sec A, करेक्ट। सो अगर हम एलसीएम ले लें, अभी दो फ्रैक्शन, चलो उनका एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस sec A इंटू 1 माइनस sec A बन जाएगा एलसीएम उनका, करेक्ट, क्योंकि वी आर टेकिंग दिस एंगल इन कंसिडरेशन। ठीक है, सो इफ यू टेक द एलसीएम, एलसीएम बन के क्या निकल जाएगा? वो एलसीएम बन गया तो वी विल गेट tan A। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस सेक ए से, करेक्ट, 1 माइनस सेक ए। ऑलराइट, देन इट विल बी सब्ट्रैक्ट, माइनस साइन है तो माइनस, वापस आएगा tan ए एंड अब ये होगा 1 प्लस सेक ए, इजंट इट? और डिनोमिनेटर में क्या होगा? द एलसीएम, 1 प्लस सेक ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस सेक ए, करेक्ट। ऑलराइट, डन। अब we know that 1 plus sec a and 1 minus sec a कौन सी प्रॉपर्टी है? a plus b multiplied by a minus b, करेक्ट, दैट इज a square minus b square, करेक्ट। a square minus b square ये ना, तो we can write 1 square also। so LCM कैन भी कैसे लिख सकते हैं? LCM लिख देंगे हम tan a, सॉरी इधर tan है, सॉरी, हाँ, tan a। ओके, सो tan a, सो tan a लिख देते हैं इधर। ओके, 2 टैन्स है हमारे पास, तो tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस सेक a, करेक्ट, माइनस वन माइनस सेक a, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, करेक्ट, हो गया ये, करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे आइडेंटिटी, 1 स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर a। ओके, नेक्स्ट, इतना हमने ढूंढ लिया। अभी 2 सेक्स है हमारे पास, 2 सेक्स है।
ऑलराइट, तो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे tan a मल्टीप्लाइड बाय -2 sec a, -2 sec a क्यों, -2 sec a बिकॉज 1 देन 1 अगेन है, 2 times 1 है हमारे पास, सो डिवाइड करेंगे बाय हाउ मच, बाय 1 sec square a, correct, sorry 1 - sec square a, ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट सिंप्लीफाइड फर्दर, हमको क्या मिलेगा, 2 tan a इंटू sec a whole divided by sec square a -1. ओके, अब वी नो दैट हमने पढ़ा था आइडेंटिटी कि sec स्क्वायर a प्लस सॉरी माइनस tan कितना देगा, 1 देगा, करेक्ट. सो दैट इज वाई अगर हम sec स्क्वायर a -1 करेंगे तो 1 उधर चला जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर a, करेक्ट. व्हाट वी विल गेट, we will get our tan square a, isn't it. अब अगर हमको tan square मिल रहा है तो what we will do here, 2 tan a and sec a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा फुल tan स्क्वायर a. ओके, tan स्क्वायर a आ जाएगा. अब sec क्या है, रेसिप्रोकल क्या है sec का, cos 1 by cos, और tan का है sin by cos. ऑलराइट, सो दिस इम्प्लाइज कि 2 sec a डिवाइडेड बाय tan a लिख सकते हैं हम लोग, क्यों, बिकॉज tan स्क्वायर और एक tan निकल जाएगा, तो tan a बन जाएगा, ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 cos a बिकॉज वो रेसिप्रोकल है, बाय cos a इंटू sin a, reciprocal ratios, right. So once we get this, we can write it as 2 cos and cos gets cancelled, so we will get 2 by sin a. So therefore we can say that 2 cosec a will be equal, right. So that's why we've proven that this thing is equal to the RHS, it is 2 cosec a. Alright, sin ऊपर जाके cosec बन जाएगा. Alright, now let's move to the next question, that is sin alpha plus cos alpha, sin alpha plus cos alpha multiplied by tan alpha plus cot alpha is equal to sec alpha plus cosec alpha. Again, proving question, ठीक है, proving question. Now what I want is, I want you guys to do this in the comment section में give me the answer. This is a homework question, okay, this is a homework question. You have to tell me how did you get this. I want the steps, okay, मुझे अब थोड़े, you can write the a few steps and explain how did you get this answer. Okay, now you have to do this. Now let's do this question. Okay, if okay sorry prove that so sec square theta plus cosec square theta is equals to tan theta plus cot theta. That is what we have to find over here, right. So let's try to do this question now. Okay, let's try to do this question. So now instead of sec square, we know that we have studied that sec square क्या होता है, sec square is nothing but हम उसका reciprocal निकाल सकते हैं, right. We can take the reciprocal of 1 by cos square. Sec is the reciprocal of cos, correct. So हम उसका reciprocal ले लेंगे, तो what will we get, on the LHS side we will get 1 by cos square theta, correct, plus कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, सो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट. सो मेनी साइंस एंड स्क्वायर्स, ओके. अब इसका होल रूट ले लिया. नाउ दूसरा साइड हम बाद में देखते हैं, पहले लेट्स सॉल्व दिस पार्ट. तो इफ यू टेक द एलसीएम, व्हाट विल यू गेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो गए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड. अब वी नो दैट अगर हम साइन प्लस कॉस दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1. सो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ऊपर टोटल, राइट. एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल रूट. ओके, ये भी सॉरी, हाँ ये भी होल रूट है. ओके,
नेक्स्ट स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स विल गेट कैंसल्ड आउट और रूट भी हट जाएगा, सो इट विल बिकम कॉस थीटा साइन थीटा. करेक्ट, इतना क्लियर है. ऑलराइट, नाउ we know we know that 1 sin square theta plus cos square theta 1 होता है. करेक्ट, वैल्यू ऑफ 1 इज दैट. तो ये 1 की जगह हम वो लिख देते हैं, हम लिख देते हैं ये है sin square theta प्लस cos square theta ये. ओके, और नीचे तो हमारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में दोनों है. करेक्ट, एंड द डिनोमिनेटर वी ऑलरेडी हैव इन द मल्टीप्लीकेशन. सो once we get this, what can we do? We can simplify it further, and we can simplify and write it as sine square theta by cos theta sin theta. We will separate it. Okay, हम separate करके then we'll get cos square theta and again the same denominator cos theta and sin theta. Okay, once we got this, sin theta plus cos theta we know, then sin plus sin gets cancelled out, cos gets cancelled out, right? So as a final answer, what we'll get? Sin theta in the first one divided by cos theta, easy. Then plus cos theta by sin theta as the next part. Okay, now what is sin by cos? Sin by cos में nothing but tan होता है. Correct, this is nothing but tan theta. और cos by sin क्या होता है? Reciprocal, cot theta. So what did we get? These two are nothing but tan theta plus cot theta. Hence proven. Okay, so that is how you will prove this. Okay, so the next question is done. Okay, this question we did. Now look over this. Now the question says that if 1 plus sine square theta is equal to 3 sine theta cos theta, then prove that tan theta is equals to 1 or 1 by 2. 1 या 1 by 2 है. Correct. So that we have to find it over here. Okay, so देखो again we have ये सब हमको दिया गया है. Now let us divide both this side also and this side also. दोनों साइड हमको डिवाइड करने हैं with sin square theta. अगर हम sin square से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 1 plus sin square theta, sorry this is 1, 1 plus sin square theta बाय साइन स्क्वायर थीटा. हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर से. दैट विल बी इक्वल्स टू 3 साइन थीटा देन कॉस थीटा, अगेन वापस डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट, स्टॉप नाउ. अब if we get this, we can write sin square theta है, तो if I add 1 on it, अगर हम 1 ऐड कर ले तो क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 1, दो है ना तो एक बाहर ले लेते हैं हम, विल बी इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि एक साइन इसके साथ कट जाएगा. ओके, नाउ we know that cosec theta plus 1 will be 3 cot theta. कैसे बनेगा इधर? Because this will become cosec square theta. sin theta का रेसिप्रोकल हो गया, राइट? तो cosec theta plus 1. और ये क्या है? This is nothing but our sin का पार्ट, cot का पार्ट, so 3 cot theta. Okay, now we know that cosec square theta minus cot square will be 1. करेक्ट, सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि ये cot square हो गया, cot square theta plus 1 is 3 cot theta. करेक्ट, 3 cot, ये दूसरा वाले 1 को हमने नेक्स्ट साइड पे ले लिया, राइट? सो once we get this, what we next step is to do cot square theta, add कर लिया 2 मिल गया, then we'll get 3 cot theta. Correct, 3 cot theta. Next one, cot square theta minus 3 and cot theta plus 2 will give me how much? 0. करेक्ट, 0 दे दिया. अगर ये पूरा भी ले लिया तो ये पूरा RHS 0 बन जाएगा. इफ वी डू मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएंगी? विल गेट cot square theta minus cot theta minus 2 cot theta
प्लस टू इक्वल्स टू जीरो. आई नो इट्स लिटिल कंजेस्टेड एंड लेंदी, बट इतना मिल जाएगा हमको, राइट? If you just do the middle term splitting, pause the video, try to do middle term splitting with this, and you'll get the answer. नेक्स्ट बन जाएगा cot थीटा टेकन कॉमन. cot थीटा कॉमन में आ गया, -1 किया, देन -2 cot थीटा +1 इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लेते हैं. ऑलराइट, इक्वल्स टू जीरो आया. व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट cot थीटा -1 and cot theta -2, they both are equal to 0. So cot की वैल्यू क्या होगी? cot theta की वैल्यू क्या होगी? 1 उधर गया, 2 उधर गया, तो इधर 1 इधर 2. अब tan क्या होता है? tan theta is a reciprocal of cot theta, correct? So that is why tan या तो वो 1 होगा या तो tan theta होगा 1/2. So hence we proved कि tan theta 1 होगा या 1/2 होगा. Alright, now let's do few MCQ questions now. पहला MCQ है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. बहुत बड़ा लगता है पर बहुत इजी है. हाउ? लेट्स डू इट. ये हमको दिया गया. अब इनको इजी वे में लिखो. sin square 22 प्लस sin square 68 कैसे लिखे? 68 कैन वी राइट इट एज 90 - 22. हाँ, हम लिख सकते हैं 90 - 22, करेक्ट. होल डिवाइडेड बाय cos square अगेन 90 - 68 कर देंगे. अभी 90 - 68 किया, प्लस cos square 68. ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट. और अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको इधर साइड में लिख दो. sin square 63 डिग्रीज प्लस cos 63 डिग्रीज. अब साइन को कैसे लिख सकते हैं? 27 साइन तो 90 के टर्म में लिख देंगे -63, करेक्ट. ये भी मिल गया. अब फाइंड द वैल्यूज आउट. वैल्यूज फाइंड करोगे. सो 90 को हम कैंसिल कर सकते हैं. सो वी विल गेट ओवर हियर sin square 22 प्लस cos square 22 डिवाइडेड बाय sin square 68 प्लस cos square 68 डिग्री मिल जाएगा. और नेक्स्ट पार्ट, ये जो दूसरा पार्ट है sin square 63 प्लस cos 63 डिग्री, और ये दूसरा वाला भी 90 से cos बन जाएगा, करेक्ट. cos 63 डिग्री. ओके, नाउ वी नो दैट sin 90 माइनस थीटा इज हाउ मच? cos बन जाता है वो, और cos इंटू 90 - थीटा इज कितना? sin थीटा बन जाता है. सो दैट विल गिव मी हाउ मच? 1/1, करेक्ट. प्लस ये 1 गेट्स कैंसिल आउट, so sin 63 प्लस cos square 63. ये मिल गया हमको, बिकॉज sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज 1. सो ये 1, तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. ये होल वैल्यू विल बी 1. तो आंसर हो गया 2. सो 2 इज द राइट आंसर. ओके, moving to the last question. If 4 tan theta is equal to 3, then the value of this is equals to how much? अब tan की वैल्यू कितनी दी है हमको? We have given that tan theta is equals to 3/4. How 3/4? 4 इधर ले जाएंगे तो 3/4 बन गया. ठीक है. सो therefore tan थीटा को हम sin by cos भी लिख सकते हैं. सो हम लिख देंगे 4 sin थीटा, सॉरी ये हम ये प्रॉब्लम लिखते हैं अपना पहले. 4 sin थीटा प्लस cos थीटा ये दिया गया हमको. वैल्यू इसकी क्या होगी? नाउ I will write it in the form of 4 कॉमन लेके sin थीटा बाय cos थीटा -1, और डिनोमिनेटर में 4 sin थीटा बाय cos थीटा. अब क्या करेंगे? प्लस साइन है तो +1 कर दिया, करेक्ट. अगर डिनोमिनेटर्स को हम cos से डिवाइड करते हैं, दोनों के डिवाइड को cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा कैंसिल हो गया, करेक्ट. सो cos, अभी tan थीटा क्या होता है? sin बाय cos ही होता है, राइट. सो 4 tan थीटा -1 डिवाइड बाय 4 tan थीटा +1. सो क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल रेशियोज आ गए. अगर अगेन इनके एलसीएम लो,
tan थीटा की वैल्यू है 3/4, सो 4 into 3/4 -1 divided by 4 into 3/4 +1. Correct. That is equal to, take the LCM, we'll get 3 minus 1, 3 plus 1. That is 2/4. So 1/2 is the final answer. So 1/2 आपका final answer होता है. So with this, students, we have finally completed with our today's session. Thank you so much for watching. Make sure to hit the like button, share with your friends, and subscribe to the friends right away. Okay, sorry. So tell it to your friends to subscribe the channel right now, and even comment down. And I'll be seeing you in more such amazing videos. Tab tak ke liye, take care everyone, and goodbye.